This conference will now be recorded. Sure. 205. So anyone has any query till now? If you are practicing development, you're practicing coding somewhere, you need, if you're facing any issue, any query, let me know. Okay. So last time we have seen about two triggers. So anyone has any query in that triggers? उसमें किसी को कुछ पूछना था? Okay. No. No one has any query. Chalo. Now what I'm saying, so the next requirement is that let's go for open a paint and let me give you another requirement. Requirement is that when a account is created, when a account is created, I want a auto contact should be created. I want the contact should be created in say in same associated account with contact first name is contact first name is what? Let's take first name is XYZ and contact last name is account name. This is a requirement that we have to write in trigger. What I'm expecting, so whenever a account will be created, I want the auto contact should be created in the same associated account with contact first name is XYZ and contact last name is account name. Fine. So according to my requirements, so guys, can you tell me what is here we have condition part? Anyone? What is the condition part here? Come on, try at least. Whether it's right or wrong, it doesn't matter. क्या लगता है आपको इसमें कंडीशन क्या है और एक्शन क्या होगा? कम ऑन, अभी नींद नहीं खुली? एवरीवन, प्रवीण, शुभम, नेहा. So what is the condition part here? The condition part is whenever account will be created. This is my condition part. And what is the action part? Auto contact should be created and where the contact first number will be XYZ and contact last name is account name. So this is the condition part. ये आपका condition part होगा और जो बाकी है आपके those were the action part. So guys, what I'm saying that कि जब भी हम कोई नया account create करेंगे, so whenever we are creating a new account in our Salesforce, let me show you. So here we have an account. Okay. So whenever we are creating a new account, so I want a contact should be created. Suppose I'm creating a new account now. If I provide account name, let's take account name is Sony TV. Fine, warm. And when I click on the save, an account will be created. So what I'm expecting here, whenever an account will be created now, I want automatically the contact should also be created. एक कॉन्टैक्ट भी क्रिएट हो जाए उसके साथ ऑटोमेटिक. आई डोंट वांट टू क्रिएट कॉन्टैक्ट मैनुअली कि मैनुअल में जाऊँ उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालूँ. नो, आई वांट ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट शुड बी क्रिएटेड व्हेन वी आर क्रिएटिंग ए अकाउंट.
एंड दिस इज नोन एज द एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट. क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट है इस अकाउंट का कॉन्टैक्ट रहेगा. सो here we have the relationship between account and contact, so here we have to create associated contacts. Clear with the requirement, everyone? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. चलो, इफ यू आर क्लियर विद द रिक्वायरमेंट, सो चलो सबसे पहले जो हमको दो स्टेप्स के डिसीजन लेने हैं वो लेने हैं. फर्स्ट स्टेप वन, कि हम फिगर कौन से ऑब्जेक्ट पे लिखेंगे. नाउ हियर वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट. सो व्हाट यू आर सेइंग, on which object we have to write triggers. These two steps are very important. अगर ये नहीं कर पाए आप, फिर आप ट्रिगर नहीं कर पाओगे. सो थिंक एंड लेट मी नो स्टेप वन की कौन से ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिखना है. एवरीवन, एंड आई नीड Account रीजन object. ऑल्सो. मुझे रीजन भी चाहिए क्यों. इफ यू आर सेइंग अकाउंट, व्हाई. इफ यू आर सेइंग कॉन्टैक्ट, व्हाई. चलो चलो फास्ट. So someone has told account object. Can you tell me the reason, please? सर क्योंकि अकाउंट के लिए कॉन्टेक्ट क्रिएट किया जा रहा है. हाँ, तो ये तो आपका सिनेरियो हो गया. बट यस. आपने अकाउंट क्यों चूज किया. अपने अकाउंट क्यों चूज किया. सो द रीजन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि व्हेन ट्रिगर विल फायर. ट्रिगर कब फायर होता है, व्हेन यू क्लिक ऑन द सेव बटन. और यहाँ आप देखो, सो आप ट्रिगर को कब फायर करना चाहते हो, व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन अकाउंट सेव बटन. जब आप अकाउंट के सेव बटन को क्लिक करते हो, देन यू वांट द ट्रिगर शुड बी फायर एंड ऑटोमेटिकली a contact should be generated. So we are clicking on account save button. That's why we have to write trigger on account object. बिकॉज ट्रिगर तभी फायर होता है जब हम सेव पे क्लिक करते हैं. और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट के सेव पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंट के सेव बटन पे क्लिक कर रहे हैं. सो दैट्स वाई वी हैव टू राइट ट्रिगर ऑन अकाउंट ऑब्जेक्ट. क्लियर? ये अकाउंट पे क्यों लिखना है एवरीवन. यस और नो. कम ऑन, यस और नो. क्लियर हुआ या नहीं. क्या यस हुआ, सर. सुबह की चाय नहीं मिली. ओके. चलो, सो वी हैव डिसाइडेड द फर्स्ट स्टेप कि हमें अकाउंट पे ट्रिगर लिखना है. नाउ स्टेप टू, व्हाट इवेंट वी हैव टू यूज. These two are very crucial decision. What events we have to use before insert, before update, after update, before delete, after delete, after delete. So what events here we have to use according to the scenario. Come on, everyone. See, अगर आप इसको नहीं सोच पाओगे फिर बहुत प्रॉब्लम होगी आगे. सो इट्स बेटर कि यहाँ पे आप सोचो, मुझे बताओ, ताकि आई कैन सी कि आप क्या क्या सोच रहे हो, क्यों आपने ये डिसाइड किया. आई कैन टेल यू. एवरीवन, what After events we have to insert. use After after insert. reason. Uh, the action is fired after clicking on save button. That's all. Yes, exactly correct. क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जब अकाउंट क्रिएट हो उसके बाद ऑटो कॉन्टैक्ट क्रिएट हो. ऐसा नहीं कि अकाउंट क्रिएट ही नहीं हुआ और उसके पहले हम कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दें, कोई मतलब नहीं बनता. जब पेरेंट ही नहीं है तो चाइल्ड बन के क्या होगा. So if parent will not be available, if account will not be available, why, what is the use of creating a child object. So what we are expecting, that whenever the account will be created, parent will be created, then I want the child will be created. So for that we have to go for after insert. Good decision. Okay. Now it's perfect, it's correct. Now we are ready to write trigger object. लिखें.
Chalo. So we have decided on account object we have to write trigger. Let's go for account. And one more thing, if you want to write trigger on from developer console also, आप यहाँ से भी trigger लिख सकते हो अकाउंट पे. आप अगर चाहो तो यू कैन गो ऑन डेवलपर कंसोल, यहाँ से भी ट्रिगर लिख सकते हो. लेट मी गिव यू द सी. वी कैन गो फॉर सॉरी फाइल न्यू एंड हियर वी हैव एपेक्स ट्रिगर. जब क्लिक करोगे ना आपसे पूछेगा कि आपको कौन से ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिखना है. सो हियर वी हैव ऑल डिसाइडेड कि मुझे अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिखना है. क्लिक ऑन दैट. वेयर इज अकाउंट? हियर वी हैव अकाउंट. अभी क्या है कि यहाँ पे आपको चूज नहीं करना बिकॉज ऑलरेडी आप अकाउंट के अंदर हो. सो आप डायरेक्ट ट्रिगर पे क्लिक करते हो आपको सीधे वो अकाउंट ट्रिगर ही आता है. बट यहाँ पे क्या है कि ये तो कॉमन है सबके लिए. Fine. So now here you have to select on which object you want to write trigger. So suppose let's take you have chosen on account object you have to write the trigger. So provide the name. What? Uh, auto contact create. चलो save it. See, auto contact create किया आपने. यहाँ पे आ गया trigger, name of trigger, on which object you want to write, and here we have before insert. But what we are expecting after insert. जैसे ही आपने इसको सेव किया, यही ऑटो कॉन्टैक्ट ट्रिगर जो आपने डेवलपर कंसोल पे लिखा है ये आपको यहाँ पे भी दिखेगा. रिफ्रेश इट. इसको रिफ्रेश करो. सी नाउ इट्स शोइंग हियर. सो चाहे आप ट्रिगर यहाँ से क्रिएट करो या ट्रिगर डेवलपर कंसोल से क्रिएट करो, बोथ आर करेक्ट, जैसे आपका मन करे. फाइन. बट यहाँ पे करने से फायदा क्या है कि आपको थोड़े कोड्स कलरफुल दिखेंगे. तो इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर आपने कहीं कोई स्पेल मिस्टेक किया हो, सपोज इंसर्ट में आपने कुछ डबल एंड कर दिया हो. सो इट्स लुक्स लाइक इन ब्लैक कलर. सबको दिख जाएगा मतलब कि ये आपको पिंक में आना चाहिए बट इट्स कमिंग इन द ब्लैक कलर, सो इट्स रॉन्ग. सो इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर दिस. चलो अब बात आती है नेक्स्ट कि whenever we are processing the record, how can I get the details? So for that we have to take list of account acc list equal to trigger dot new. Right. So guys, what does this line means? Line number 2 का क्या मतलब है? I need answer. Anyone? Line number 2 का क्या मतलब है? What is the meaning? जो न्यू अकाउंट क्रिएट हो रहा है उसके सभी डिटेल्स एसीसी लिस्ट में आ जाएंगे. Exactly. So whatever record we are going to process, अगर मैं कोई नया अकाउंट रिकॉर्ड प्रोसेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके सारे डिटेल्स मुझे किससे मिल जाते हैं? ट्रिगर डॉट न्यू से मिल जाते हैं और जो सेव्ड है आपकी एसीसी लिस्ट में. इट्स वेरी गुड. Now next, since we have taken list of accounts, so we have to take for loop. Inside for loop, we can pass account ACC colon ACC list because records are available in ACC list. So मैं उस ACC list से I am taking record and then I am extracting what? No, I don't want to extract. So what I'm expecting is whenever the account will be created, I want the automatic contact should be created. So inside for loop, we are going to write a logic contact con equal to new contact. Right? हमने already देखा हुआ है कि whenever we want to create a new record, this syntax we are going to follow. जब भी हम कोई नया रिकॉर्ड हमने एडमिन टाइम में भी देखा था कि हाउ वी कैन क्रिएट ए न्यू रिकॉर्ड विथ कोड, हाउ वी कैन अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड विथ कोड. So for creating a new record this with code, this would be the syntax contact con equal to new contact. Then we have to provide con dot first name. Guys, just a minute, I'm coming. Just a minute.
यस सॉरी गाइस। हाँ, तो क्या हम बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट सो कॉन डॉट फर्स्ट नेम। सो अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट नेम शुड बी एक्स वाई जेड, सो आई कैन प्रोवाइड डायरेक्टली फर्स्ट नेम शुड बी एक्स वाई जेड। यहाँ पे हम आए एंड वी कैन प्रोवाइड फर्स्ट नेम शुड बी एक्स वाई जेड। फाइन। कॉन डॉट लास्ट नेम, कॉन डॉट लास्ट नेम, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि लास्ट नेम हमें वो डालना है जो अकाउंट का नेम हम सेव करेंगे। So here we are saving account name in trigger.new. So here we can take ACC, account dot name. It means whatever the name we are keeping here, that name we are providing inside last name. Okay. If you want to provide some more values like phone, you can provide it. अगर आप चाहते हो कुछ और con dot email, so you can provide it. बहुत जितने भी fields है you can provide if you want, right? So I can provide something abc@gmail.com. I can provide phone something number. Fine. And after that, what I'm going to provide? I'm going to provide here insert con. Insert con. It means now if I click on the save control S, let's see whether the code has saved or not. Okay, so see now our code is saved. So what I'm expecting, so whenever the account will be inserted, after insertion of account, a automatic contact should be created where the first name of the contact will be XYZ, last name will be the whatever the account name will be there, phone number I have given, email I have given, and at the last we have inserted contact. Okay, let's see what we are getting now. I am going to create a new account. First, let's see how many contacts we have in our Salesforce. So if you can go in our Salesforce, you can go with the all contacts. You can see now here 25 contacts. Total कितने हैं? 25 contacts है. Fine. Let's create our account. हम चलते हैं and we are going to create a new account and let's see कि contact create हो रहा है या नहीं. Fine. Let's click on new button of account. I'm going to create a new account. Let's take Samsung. Fine. I've given something rating warm. I've given something account number. Fine. Now when I click on the save button, what I'm saying that जैसे ही मैं account पे save करूँ, automatically contact should be created. Save it. So account has been saved. Let's go for contact. Currently we have 25 contact. Let's refresh it. अगर contact automatically create हुआ होगा, so that definitely the count will increase. So let's refresh it. Fine. Scroll down, you can see now it's 26. Now the count has increased. It means one contact is created. And what was the contact name? XYZ Samsung Galaxy. See here. This is the record first name and this is the last name that we have given. And this record has, you can see the phone number we have given. You can see the email address that we have given. So now when we are providing account details, automatically contact is creating. Okay, but the issue is that that contact should not यहाँ पे visible नहीं हुआ. Contact तो create हुआ but contact यहाँ visible नहीं हुआ. But what I was expecting कि जैसे ही मैं account create करूँ एक contact create हो but वो associated contact होना चाहिए. So contact is creating but it is not linking here. वो यहाँ पे link नहीं हो रहा. This is the issue. Okay, but don't worry, we'll see. But till here, if you have any query, let me know. So what is the use of for loop here? What is the Use of for loop. user for loop? अच्छा, use of Use for of loop. yes. अच्छा, see, if you are not using the for loop, अगर आप इसको use नहीं करोगे and directly if you are going to create a contact, so it's you can say it's a syntax error. क्योंकि आप क्या चाहते हो कि जो आप रिकॉर्ड प्रोसेस कर रहे हो, हम किसके रिकॉर्ड प्रोसेस कर रहे हैं? अकाउंट के रिकॉर्ड को प्रोसेस कर रहे हैं. सो उस रिकॉर्ड के प्रोसेस होने के बाद आई वांट टू क्रिएट ए कॉन्टैक्ट. So this record we are processing. So inside this for loop we have to provide कि मैं चाहता हूँ कि जब ये account contact create हो जाए, process हो जाए, उसके बाद ये contact create होना चाहिए.
So for that we have to keep the contact creation code inside for loop of account, ताकि अकाउंट क्रिएशन होने के बाद कॉन्टेक्ट क्रिएट हो. Okay, everyone, yes or no? Because anyhow inside our contact last name we have to provide account name. अगर मैं for loop नहीं यूज करता हूँ, suppose let's take example, I haven't used for loop. चलो ये बताओ कि मुझे मैं कॉन्टेक्ट का लास्ट नेम कैसे निकाल. अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूँ, सो इट विल गिव यू एरर मैसेज. लेट मी शो सी एरर. एससीसी नहीं पता क्या है एससीसी. सो अगर आप फॉर लूप नहीं प्रोवाइड करते हो, हाउ कैन यू प्रोवाइड अकाउंट नेम इन द कॉन्टेक्ट लास्ट नेम? एनी क्वेरी, एनीवन, एनी सजेशन? यस और नो? So it's better if we can provide for loop and then we can pull out the account name and then we can add it here in the last name. Clear हुआ? Everyone? Yes or no? Tell me at least. Yes, Rahul. नहीं आया फिर भी बताओ Yes, sir. कि सर ये चीजें क्लियर नहीं हुई. चलो अभी बात क्या आई? what is our expectation? Our expectation is what? कि जो भी कॉन्टेक्ट क्रिएट हुआ वो यहाँ आना चाहिए था एसोसिएटेड कॉन्टेक्ट में, बट कॉन्टेक्ट क्रिएट हुआ बट वो यहाँ पे लिंक नहीं हुआ. सो गाइज अभी हम आते हैं बैक टू आवर एडमिन पार्ट. व्हेन वी हैव लर्नड अबाउट रिलेशनशिप, राइट, हमने रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रिमेंबर? कौन कौन से रिलेशनशिप थे एवरीवन? चलो जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन. कौन कौन से रिलेशनशिप थे? मास्टर एंड लुकअप रिलेशनशिप. मास्टर एंड लुकअप रिलेशनशिप, डेफिनेटली. ठीक है. सो डेफिनेटली यहाँ पे अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में रिलेशनशिप है, यस और नो? यस सर. राइट. Yes, sir. Yes. वेयर अकाउंट इज पेरेंट, जैसा हमने देखा, लेट मी चेंज द कलर. वेयर अकाउंट इज पेरेंट, ठीक है, एंड वेयर कॉन्टैक्ट, सॉरी स्पेल मिस्टेक, बट आई थिंक यू कैन, एंड चाइल्ड. नाउ अगर दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, चाहे वो लुकअप हो या मास्टर, इट डजंट मैटर, ठीक है, कोई भी हो. सो अब मुझे क्या करना है कि जो मैंने कॉन्टैक्ट क्रिएट किया, राइट, इस कॉन्टैक्ट को मुझे उस अकाउंट से लिंक करना है, राइट. उसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं? एनी क्लू, एनी सजेशन? कि जो भी कॉन्टैक्ट में क्रिएट कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर, उस कॉन्टैक्ट को मुझे अकाउंट में लिंक करना है. सो मुझे एक ब्रिज यूज करना पड़ेगा, दैट वी ऑलरेडी नो, वी हैव द ब्रिज नेम इज व्हाट? अकाउंट आईडी. तो आप बोलोगे सर ये कहाँ है अकाउंट आईडी, ये ब्रिज? सो लेट मी शो यू कि कभी भी आप, पहली बात तो ये बताओ, अगर आप रिलेशनशिप बनाते हो पेरेंट और चाइल्ड पे, सो विच ऑब्जेक्ट विल बी द प्रायोरिटी टू क्रिएट रिलेशनशिप? If you are building relationship between two object, account and contacts, account is parent and contact is child, on which object we are going to write relationship or create relationship? On child. Account. Child ना, ठीक है. Yes. So we can go to child, we can go for edit object, we can go for fields and relationship. और यहाँ पे देखो आप, कॉन्टेक्ट का अकाउंट के साथ लुकअप है, लेकिन इन दोनों के बीच में ब्रिज कौन सा है? कनेक्शन किससे हो रहा है? अकाउंट आईडी से. सो कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट को लिंक कौन करता है? अकाउंट आईडी. सो दैट अकाउंट आईडी आई हैव टेकन हियर. सो रिमेंबर, कभी भी आप रिलेशनशिप बनाओगे, सो दो ऑब्जेक्ट के बीच जो लिंक वाली बात होगी, ब्रिज होगा, दैट इज द नेम. दिस नेम विल बी द लिंक, दिस नेम विल बी द ब्रिज. इसी लिंक को आपको यूज करना है, इसी नेम को आपको यूज करना है इन योर कोड. सो दिस अकाउंट आईडी आई एम गोइंग टू यूज, एंड ये अकाउंट आईडी किस पे अवेलेबल है? ऑन कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट. कॉन्टैक्ट पे अवेलेबल है. सो आई कैन गो इन कॉन्टैक्ट, आई कैन प्रोवाइड योर व्हाट?
con dot account id, you can see, right? मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहा है, दैट कॉन्टैक्ट विल बी एडेड टू अकाउंट आईडी, सॉरी, अकाउंट डॉट आईडी। फाइन। मैं चाहता हूँ कि जो भी अकाउंट आईडी है, जो भी अकाउंट आईडी हम प्रोसेस कर रहे हैं, उस अकाउंट आईडी के अंदर में वो कॉन्टैक्ट क्रिएट हो। दैट्स इट, हमने लिंक कर दिया। नाउ सेव दिस रिकॉर्ड। फाइन। Now again, if I am going to create a new account, let's see, अब रिजल्ट देखते हैं नया। If I create new, if I go and create a new contact, let's take iPhone, warm, save it. If I'm going to save it now, account will be created and you can see automatically the contact is created, और वो किसके अंदर आ गया, आपके सेम अकाउंट के अंदर आ गया। हमने उसको लिंक कर दिया कि कॉन्टैक्ट तो क्रिएट हो, और कॉन्टैक्ट क्रिएट होने के बाद उसी अकाउंट में जो हमने क्रिएट किया है, सेम अकाउंट में इट विल बी एडेड एज ए एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट। सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और अब कोडिंग में भी यूज आएगा। चलो, see this code and let me know if you have any query. Hello. Yes. Hello, Rahul. One thing, here we are declaring a trigger as auto contact create on contact, and then we are creating a list where we are assigning a trigger.new. Yes. So can you explain this particular line, list account? See, ट्रिगर डॉट, आपको इससे मतलब नहीं है, पहले आपको डिसाइड करना है कि ट्रिगर डॉट न्यू क्या देता है मुझे। ट्रिगर डॉट Right. न्यू विल ऑलवेज गिव यू द करंट प्रोसेस रिकॉर्ड। जो भी रिकॉर्ड आप प्रोसेस करोगे Okay. अकाउंट में, जो भी रिकॉर्ड आप प्रोसेस, वो आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा। और फाइन। Right. और Right. सेल्सफोर्स ने बोला है कि ट्रिगर डॉट न्यू जो होता है ना, वो हमेशा ही लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, Correct. सॉरी, ट्रिगर डॉट न्यू इन सेल्सफोर्स, ये हमेशा आपको लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड लेता है। ऑब्जेक्ट्स, इस ऑब्जेक्ट मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स ले, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड लेता है ये। सो दैट्स व्हाई उससे जो भी रिकॉर्ड प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए उसको हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ अकाउंट में। अगर हमने कॉन्टैक्ट पे लिखा होता तो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट लेते हैं, अगर हमने यहाँ लीड पे लिखा होता तो हम लिस्ट ऑफ लीड लेते हैं, क्योंकि ट्रिगर डॉट न्यू Okay. से जिस ऑब्जेक्ट पे हम ट्रिगर लिखते हैं, उसी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स आते हैं। फाइन। उसको आने के बाद फिर हम Right. we Right. can go in the for loop and we can then circulate one by Correct. one, iterate one by one. Okay. Yeah. Yeah. My question, another question is, we are here writing the events, right? After insert or before update, before Exactly. insert, something like this. So at a given point of time, in the same trigger, we can um, uh, specify multiple events Exactly. while Yes. declaring the trigger, right? Yes. So can we, in conditional statements, can we evaluate the events? Of Suppose course. if, That's why we have huh, context variable. That's why we have context variable, so that we can evaluate the events. In which, when at the time of after insert, what logic you want to perform. At the time of right, before insert, what logic you want to perform. Of course we can do. okay, okay, ठीक है, वो हम आगे आगे देखेंगे। एक लास्ट में हम जो ट्रिगर करेंगे ना, okay, हम okay, fine, सबको एक मर्ज करके करेंगे ट्रिगर। ठीक है, fine, fine. चलो। सो गाइस, किसी और को कुछ पूछना है? No one. Chalo. So this is what we have seen, how we can create an auto contact in a associated account. उसी account के अंदर एक contact create करना हो, and how we can link it. This is the code. The important thing is that how we can link. Here we have this line number 5. Fine. Chalo. Let me give you one more requirement. The requirement is that, so you can see, let me give you requirements here on contact. Fine. So you can see here we have a contact with the name of Rahul Kumar. We can say account name, we can say phone, whatever it is. And here we have the email address.
So what I'm saying that suppose let's take example, let's take a scenario कि अगर यहाँ पे किसी ने कोई कोई गया, कोई भी यूजर गया, he has given here contact, he has given new, he has given the name something Mr. Again given the same name, given the same last name, given the same phone number, given the same email address, right? बट क्या है कि ऑलरेडी इसी नाम से, इसी फोन नंबर से और इसी ईमेल एड्रेस ऑलरेडी डेटा इज अवेलेबल इन द डेटाबेस. यू कैन सी यहाँ पे है ना. इफ आई क्लिक ऑन द सेव, इट इज गिविंग मी है, इट इज गिविंग मी है कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है, बट स्टिल इफ आई क्लिक ऑन द सेव, द डेटा विल बी सेव्ड सक्सेसफुली, राइट. उसने एक वार्निंग तो मुझे दी है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है, बट व्हेन आई क्लिक ऑन द सेव अगेन एंड द रिकॉर्ड विल बी सेव्ड, and you can see now with the same name, same phone number, same email address, so we have duplicate records. हालांकि उसने एक वार्निंग प्रोवाइड की मुझे, बट अगर मैं वार्निंग को नेग्लेक्ट करके if I again click on the save button, that record will be saved successfully, and you can see here a duplicate record. So my client told me that they want to restrict this duplicacy. वो कहता है कि अगर कोई बंदा सेम नेम से, सेम फोन नंबर से और सेम ईमेल एड्रेस, अगर कोई भी नया रिकॉर्ड, अगर इफ एनीवन इज ट्राइंग टू क्रिएट इन कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, आई वांट टू प्रोवाइड ए एरर मैसेज कि यू कैन नॉट अलाउ डुप्लीकेट रिकॉर्ड और ऑलरेडी दिस रिकॉर्ड इज एग्जिस्ट इन द डेटाबेस. आई होप दिस रिक्वायरमेंट इज क्लियर टू यू एवरीवन. क्लियर रिक्वायरमेंट, यस और नो? Come on, let me know. Clear है? Yes. चलो, so let's see. So let's same thing. Step 1, कौन से ऑब्जेक्ट पे लिखना है हमें ट्रिगर? अभी भी इतना टाइम. On which object we have to write trigger? On which, for this Contact. scenario, contact. Yes, contact. And what event we are going to use? It should be before insert. Before insert. Why? Because we do not want to save that record. Exactly. So what we are expecting is before saving the record, I want to check for the validation, whether the duplicate record is already there or not. So we can go for before insert and as well as before update. अभी before update क्यों? हो सकता है कोई यूजर, किसी यूजर ने क्या किया, he can go for any other record, he can modify the record and he has given the duplicate name like Rahul. He can provide here Kumar, he can provide the same phone number again. उससे क्या कर रहा है, वो existing record को update कर रहा है, right? He can provide the same email address and then save it. Fine. So now see again we have three. So चाहे वो record को insert करे या update करे, we are getting a duplicate records here. So that I want to get it. So we can go for events before insert and before update. Okay guys, हमने event decide कर लिया. Let's go to developer console. Let's go to triggers, Apex trigger. On contact object I want to do, let's search for contact. Do we have contact? Here we have contact. And provide the name, check duplicacy. Check duplicate. Okay. Take duplicate. So we have to go for before insert and comma before update. Before update. Now then we are going to take our process, जो हम record process कर, कैसे मिलता है? Simple. It's a fixed syntax. Contact conlist equal to trigger dot new. See, फिक्स सिंटेक्स. जैसे हमने ये लाइन लिखी है, मतलब मैं जो रिकॉर्ड प्रोसेस करूंगा ना, उस वो रिकॉर्ड का मुझे डेटा मिल जाएगा. ट्रिगर डॉट न्यू प्रोसेस रिकॉर्ड. फाइन.
Then we are getting list of contact. We have to take for loop as usual. We can provide contact C or con equal to con list. Fine. Now here, यहाँ पे I can go and I can check for a duplicacy. I can take a list of contact, I can provide here check duplicate equal to, I can write a small SQL query, select ID from contact. अभी क्या है, जैसे मैंने लिखा select ID from contact, इससे कितने रिकॉर्ड आएंगे एवरीवन? कम ऑन, इससे कितने रिकॉर्ड आएंगे हमें? If I have All. written only select all records, right? all But all मुझे in the सब नहीं, table. हाँ. तो मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ। उस रिकॉर्ड को मुझे चेक करना है कि ऑलरेडी उसके डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स डेटाबेस में हैं या नहीं। तो यहाँ से मुझे सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। सो लेट्स फिल्टर आउट द रिकॉर्ड। कैसे फिल्टर करेंगे? वेयर लेट्स टेक कॉन्टेक्ट क्या है, कॉन्टेक्ट का लेट्स चेक फॉर द नेम और लेट्स गो फॉर द फर्स्ट नेम इक्वल टू कॉलन, जो हम रिकॉर्ड प्रोसेस कर रहे हैं, कॉन लिस्ट सी में आया सी डॉट फर्स्ट नेम, सी डॉट फर्स्ट नेम, ओके, एंड लास्ट नेम equal to colon C dot last name. Okay, and let's provide here phone number, phone equal to colon C dot phone. C क्यों ले रहे हैं हम? Because C is the current process record. जो भी हम रिकॉर्ड प्रोसेस कर रहे हैं वो हमने कॉन लिस्ट में डाला है और कॉन लिस्ट से वापस से C में डाला है। तो सी में क्या आएगा, आपका जो रिकॉर्ड आप प्रोसेस कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि जो आपने यूआई से रिकॉर्ड डाला है उस फर्स्ट नाम से रिकॉर्ड है या नहीं, जो आपने यूआई से लास्ट नेम डाला है उससे आपका लास्ट नेम अवेलेबल है या नहीं, जो आपने यूआई से फोन नंबर डाला है उस फोन नंबर से आपका फोन ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं। ओके, एंड ईमेल equal to colon C dot email. फाइन, अगर ये चारों मैच करते हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फोन एंड ईमेल, और जैसे ये चार फिल्टर लगा के हमने सॉकेल, अगर उससे मुझे एक भी आईडी मिलती है, अगर एक मिलती है तो भी डुप्लीकेट है, 2 आईडी मिलती है तो भी डुप्लीकेट है, 10 आईडी मिलती है तो भी डुप्लीकेट है। अगर 0 मिलता है इट मीन्स वी डोंट हैव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, राइट? सो लेट मी सेव दिस। Rahul, this in for statement, this spelling is correct, contact, or it is just a variable? Which contact? In for. Sorry, this one. Sorry, contact. Okay, that's why it's giving me error here. तभी मुझे error आता है। Contact, ठीक है। अभी क्या है कि जो मैं रिकॉर्ड प्रोसेस कर रहा हूँ उस प्रोसेस रिकॉर्ड से मैंने जो भी क्लाइंट ने मुझे बोला कि मुझे ये 4 फील्ड की डुप्लीकेसी चेक करनी है, ये क्लाइंट प्रोवाइड करेगा कौन कौन से फील्ड आपको इंक्लूड करने हैं टू चेक डुप्लीकेसी। सो आप क्लाइंट ने प्रोवाइड किए 4 फील्ड की, टेक दिस 4 फील्ड्स एंड चेक फॉर द डुप्लीकेसी इन योर डेटाबेस। तो हमने चेक किया, एंड नाउ इफ आई एम चेकिंग हियर कि इफ जो भी इस सॉकेल क्वेरी से डेटा आ रहा है, अगर उसका साइज मतलब उसका काउंट डॉट साइज, अगर आपका ये ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब अगर एक भी रिकॉर्ड आता है सॉकेल क्वेरी से, मतलब क्या, इट मींस वी हैव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, राइट? सो आई कैन प्रोवाइड हियर व्हाट, सी डॉट add error. Add error is a by default method given inside the trigger. कभी भी आपको एरर प्रोवाइड करना हो ना, वी हैव टू यूज सी डॉट एड एरर। आई कैन प्रोवाइड योर व्हाट, यू कैन नॉट insert
duplicate records. You cannot insert duplicate record. Just a message I am expecting here. फाइन सी डॉट है, वो कब आएगा? पहले जो भी आपने सॉकल फिर से फिल्टर किया, अगर वो फिल्टर करने के बाद अगर साइज आपका 0 आता है तो आपको एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 आता, 1 आ गया साइज, सो इन दैट केस इट विल प्रोवाइड यू कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। चलो फिर चेक करते हैं। सो लेट्स गो टू आवर कॉन्टैक्ट। कहाँ गया? यहाँ पे। लेट मी टेक द सेम दिस ईमेल एड्रेस एंड यूज इट। हाँ, अभी क्या है कि अभी आप ऑलरेडी देखो 2 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हैं। ये आपके, अगर क्लिक ऑन द न्यू, I'm trying to go for the name again. I'm going with the duplicacy. I can provide Rahul. I can provide last name Kumar. I can provide phone number. One more phone number. Fine. And I can provide here email address. So now you can see. Sorry. What is the email address? What was that? Oh my God, it's not copied. Copy. New. Okay, I can provide phone number. Okay. I can go for email address. Yes. Now, अभी मैं चाहूंगा कि आई वॉन्ट टू इंसर्ट दिस रिकॉर्ड। लेट्स क्लिक ऑन दैट सेव। सी आई एम गेटिंग व्हाट? You cannot insert duplicate record because already with the same phone number, with the same email address, we have record. See, आप कितना भी save पे click करो, it will not allow to insert your record because it is checking duplicacy कि already इस नाम से record है. You cannot insert duplicate records. लेकिन वही आपने अगर email address change कर दिया, let's take one. Now it's not a duplicate record. 4 में से क्या हो गया? एक आपका क्या है? डुप्लीकेट। नाउ इफ यू क्लिक ऑन द सेव, इट इज सेव्ड सक्सेसफुली। अब वो इसको डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं मान रहा बिकॉज ईमेल एड्रेस हैज इज समथिंग डिफरेंट। सो रिमेंबर गाइज, ये कोड आपको बहुत बार आता है लिखने को। समटाइम्स दे हैव कस्टम फील्ड, कस्टम ऑब्जेक्ट्स, मे बी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, एंड दे व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे यूजर्स है जो बार बार डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। सो इन दैट केस दे आर एक्सपेक्टिंग, क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है कि वी कैन राइट ए लॉजिक सो दैट वी कैन गेट रिड आउट ऑफ डुप्लीकेसी। सो दिस टाइप ऑफ कोड वी हैव टू राइट। स्मॉल कोड, कोई मैंने कहा ना, ट्रिगर में कोई बड़े बड़े लंबे कोड्स नहीं होते, बट इट्स ए लॉजिकल कोड। ठीक है। अगर आप सपोज नाउ आई कैन गो फॉर कॉन्टैक्ट। अगर मैंने किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को इफ आई वांट टू मॉडिफाई, चलो मैंने क्या किया कि चलो मैं नया नहीं इंसर्ट कर सकता, बट आई विल ट्राई टू मॉडिफाई दिस, कि मैं इसको ही मॉडिफाई करके डुप्लीकेट बना दूं। फाइन, आई कैन प्रोवाइड द फोन नंबर, आई कैन प्रोवाइड द ईमेल एड्रेस। कहाँ गया? Here we have. And then I click on save. Again it will not allow me. You cannot insert duplicate record because with this same name, same phone number and same email address already we have data. अगर मैंने 1 भी किया, still we have data. It will give me the error. क्योंकि already है ना हमारे पास, already we have. अगर फिर मैंने इसको 2 किया, in that case it will save it. It will not take as a duplicate. See how interesting this. So now if you want to check duplicacy on every object, आप अकाउंट पे चेक करना चाहते हो, आप लीड पे चेक करना चाहते हो, आप अपॉर्चुनिटी पे चेक करना चाहते हो, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। सेम टाइप ऑफ कोड यू हैव टू राइट। जो हमने कॉन्टैक्ट पे लिखा है, सेम थिंग यू हैव टू राइट ऑन अकाउंट, कैंपेन, लीड, बुकिंग फ्लाइट, रेस्टोरेंट, एवरीवेयर। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हुआ कुछ? यस और नो? come on, let me know. Yes, sir. Yes. सो अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे डुप्लीकेसी चेक कर सकते हैं। चलो, let me provide you one more requirement. The next requirement, see, triggers ऐसा नहीं, triggers में मुश्किल से देखा जाए ना, तो अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 7-8 types of triggers we have.
ठीक है, और उसी ट्रिगर्स के आसपास आपको लॉजिक लिखना है। कभी वही लॉजिक्स आपको अकाउंट पे लिखना होगा, कभी उसी टाइप के लॉजिक्स आपको कॉन्टैक्ट पे लिखने पड़ेंगे। सो ओनली वी हैव 8 to 9 टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स वी हैव, बस वही तो सीखना है हमें। फाइन, नाउ the next requirement is that let's take an example, let's take a scenario. We have two objects again, account, let's take contact, ठीक है, and we all know that कि दोनों के बीच में relationship है where account is parent and contact is child. What I'm expecting here, account के अंदर एक है phone field already है, contact में भी है phone field. Fine, let me show you. चीज़ आपको क्लियर है। हियर वी हैव कॉन्टैक्ट, जहाँ पे फ़ोन है आप देख सकते हो। वी कैन गो फॉर अकाउंट, हियर ऑल्सो वी हैव फ़ोन। लेट मी शो यू, सी यहाँ पे भी फ़ोन है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर, लेट्स टेक एग्जांपल यूनाइटेड ऑयल एंड गैस सिंगापुर। सो आई कैन गो हियर, वी हैव टू कॉन्टैक्ट्स, आई कैन प्रोवाइड वन मोर कॉन्टैक्ट, लेट मी शो यू। सो आई कैन प्रोवाइड in this register, I can provide some phone numbers, जो भी phone number होंगे I can provide it, I can save it. We have 3 contacts. Like that we have 4, 5, multiple 10 contacts. Let's take example. तो मेरे पास इतने contacts है. Now what I'm expecting here, my requirement is that client ने मुझे क्या बोला कि all contacts are associated to this account, United Oil Gas Singapore. So what I'm expecting here कि अगर in future में कभी भी United Oil Gas Singapore account का कभी भी किसी ने phone number update किया, suppose if I'm going to update some phone number, fine. So whenever we are updating accounts phone number, so what I am expecting कि जैसे ही मैंने account के phone number को update किया, I am expecting कि इसके सारे contacts के phone number same phone account के phone number से update होने चाहिए। Got it? Requirement is that कि जैसे ही मैं parent जो है उसके phone number को update करूँ, same phone number should be copied inside child's phone number. अगर 3 contacts है तो तीनों के phone number change हो जाएंगे, 10 contact है तो 10 के phone number change हो जाएंगे, 50 contacts है तो 50 contacts सबके phone number according to the parent phone number should be overridden, should be copied, should be modified. Everyone, requirement clear है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. चलो, so guys, I want you to write, I want कि एटलीस्ट अगर आप इसका अगर 50-60% भी कोड लिख पाओ ना, पहले स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, then how we can take the current process record, how we can write a for loop, and how we can process the logics. So I'm expecting, guys, so I'm giving you just 5 minutes of time, and I'm expecting everyone to share your code in the chat box again. Okay, so please start. I'm just giving you 3 to 4 minutes of time. Yeah, and please share with the public, not with the private. Yeah, share your code as everyone so that I can see.
Oh my God. No one? So guys, क्या हुआ? विभा, शिमा, दीपाली, नेहा, रोहित, I can see APS. Any issue? Anyone? Am I not? Am I audible, guys? Everyone? क्या हुआ? Yes, Rahul, you are audible, but issue is with syntax. नहीं, जो भी आपने लिखा है, देखिए मैं ये नहीं बोला कि आप 100% सही लिख के ही भेजो, वो चलना है। व्हाट यू आर थिंकिंग, बस मुझे वो जानना है ताकि उस चीज को मैं करेक्ट कर पाऊँ। मैंने ये नहीं कहा कि एकदम 100% कोड सही होना चाहिए। आई जस्ट वांट टू सी कि आप क्या सिंटेक्स, क्या लॉजिक फॉलो कर रहे हो। दैट्स इट। ऐसा थोड़ी ना कि एक बार में सब सीख ही लेते, धीरे धीरे सीखते हैं। कम ऑन आई एम एक्सपेक्टिंग, किसी का भी गलत हो या सही, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट कुछ कोड, उसके बाद में हम करेंगे। चलो, सो व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है अकाउंट और दूसरा है कॉन्टैक्ट। इसे क्या करना है कि जैसे ही मैं अकाउंट के फोन नंबर को अपडेट करता हूँ, लेट्स टेक कोई भी फोन नंबर है, दैट फोन नंबर शुड बी अपडेटेड टू मल्टीपल। अभी क्या है, कॉन्टैक्ट तो मल्टीपल है, एक कॉन्टैक्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वही फोन नंबर मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स में अपडेट हो जाए। सपोज अगर उसके तीन कॉन्टैक्ट्स है तो तीन फोन नंबर अपडेट हो जाए सबके अंदर। तो डेफिनेटली हमें पता है कि अकाउंट और कॉन्टैक्ट में रिलेशन है, दोनों में कनेक्शन है, right? We have some connection between account and contact. That's a relationship we have here already. So that's why contact is viewing at the associated account. So मुझे क्या करना होगा? अब मुझे पता है कि अकाउंट और कॉन्टैक्ट किससे लिंक है, इसका लिंक किससे है? अकाउंट आईडी से। उसका ही तो यूज करना था हमें कि कभी भी रिलेशनशिप की बात आए ना, सो आपको जो दोनों के बीच का ब्रिज है, बस उसको सही से यूज करना आना चाहिए। अगर आप इसको सही से यूज करना सीख गए ना, इट्स वेरी इजी। अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट के बीच का लिंक कौन है? ये अकाउंट आईडी। सो मुझे पहले इस अकाउंट से इसकी आईडी निकालनी है, राइट? इस अकाउंट से क्या निकालूंगा मैं? इस अकाउंट से डेफिनेटली इस अकाउंट से मैं इसकी अकाउंट की आईडी निकालूंगा, ठीक है? अब मैंने जैसे अकाउंट से इसकी आईडी निकाल ली, वो आईडी मैं पास करूंगा कॉन्टैक्ट को, राइट? कि टेक दिस आईडी। अभी मेरे पास कॉन्टैक्ट तो 50 है, बट मुझे 50 कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, मुझे यही 3 कॉन्टैक्ट के फोन नंबर को अपडेट करना है जो इस अकाउंट से कनेक्टेड है, राइट? सो आई जस्ट वांट टू अपडेट 3 कॉन्टैक्ट। सो इस आईडी के थ्रू मैं कॉन्टैक्ट फिल्टर करूंगा कि इस आईडी से कितने कॉन्टैक्ट ऐड है, कितने कॉन्टैक्ट कनेक्टेड है। सो इस आईडी से अगर 3 कॉन्टैक्ट कनेक्टेड है, दैट 3 फोन नंबर शुड बी अपडेटेड। सो चलो लेट्स गो फॉर द कोड। पहले तो ये बताओ, ऑन विच ऑब्जेक्ट वी हैव टू राइट ट्रिगर, कॉन्टैक्ट पे या अकाउंट पे? कम ऑन क्विकली। अकाउंट इस पे? Account पे, account. अकाउंट अकाउंट पे कॉन्टैक्ट पे। डेफिनेटली, अकाउंट पे। व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि ट्रिगर कैसे डिसाइड करना है, आप किसके सेव बटन पे क्लिक कर रहे हो। तो यहाँ पे किसके सेव बटन पे क्लिक कर रहे हो? हियर वी आर क्लिकिंग ऑन अकाउंट सेव बटन की। मैं चाहता जैसे ही मैं अभी क्या किया, मैंने यहाँ पे मैंने जैसे ही फोन नंबर अपडेट किया और सेव किए, किसका सेव बटन है ये अकाउंट का सेव बटन है ना। सो जिस ऑब्जेक्ट के सेव बटन पे हम क्लिक करेंगे, ट्रिगर हम उसी ऑब्जेक्ट पे लिखते हैं। रिमेंबर, सेव किया, इट्स अपडेटेड। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली ट्रिगर क्या करे, उसके कॉन्टेक्ट्स के फोन को अपडेट करे। दैट लॉजिक वी हैव टू राइट। सो ट्रिगर तो हमें किस पे लिखना होगा? अकाउंट ऑब्जेक्ट पे। सो लेट्स गो फॉर अकाउंट अगेन, न्यू ट्रिगर, एंड लेट्स टेक हियर अकाउंट।
But logic, update contact phone. Okay, submit. Update contact phone. चलो इवेंट क्या होगा एवरीवन? What event we have to take? After update. Very good. After update. Correct. हम चाहते हैं कि अकाउंट को अपडेट करने के बाद आई कैन गो एंड अपडेट माय कॉन्टेक्ट फोन नंबर. चलो लेट्स टेक द प्रोसेस रिकॉर्ड. Figure dot new. You can take for loop again. See, आपके मैक्सिमम सिंटेक्स तो सेम ही है जो रिपीट करना है. अकाउंट ACC कॉलन ACC लिस्ट. अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले यहाँ पे अकाउंट की आईडी निकालनी है. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ. पहले तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग ACC ID करके, जिसको मैंने इनिशियली ब्लैंक रखा है. कुछ नहीं. उस ACC ब्लैंक जो रखा है उसके अंदर मैं फिल करता हूँ ACC ID. मतलब जो भी अकाउंट की आईडी है, मैंने उसको पुल किया और उसको मैंने यहाँ पे रख लिया. फाइन. अब ACC ID के अंदर में क्या आएगा, अकाउंट की आईडी आएगी. ये अकाउंट की आईडी I am going to pass inside list of contact con list equal to select ID comma क्या करना है हमें, सॉरी मैं क्या करना था, मैं रिक्वायरमेंट भूल गया. ओके, फोन नंबर वेट करना था. ID and phone from ID phone from contact where account ID ब्रिज का नाम है इक्वल टू कॉलन एंड आई कैन प्रोवाइड हियर ACC ID. मैंने क्या किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने पहले जो भी हम अकाउंट प्रोसेस कर रहे हैं उस अकाउंट की आईडी निकाल ली और उसकी आईडी पास कर दी. मैंने कहा कॉन्टैक्ट को कि भाई मुझे सारे कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, मुझे वही कॉन्टैक्ट चाहिए, मुझे वही कॉन्टैक्ट और उसके फोन नंबर चाहिए जो इस अकाउंट आईडी से कनेक्टेड है. अभी हो सकता है मेरे पास 500 कॉन्टैक्ट होंगे, नहीं करना है मुझे 500 कॉन्टैक्ट को अपडेट. मुझे बस उसी कॉन्टैक्ट को अपडेट करना है जो मेरे अकाउंट्स है उस अकाउंट से कनेक्टेड. मुझे सबको अपडेट नहीं करना है, मुझे उन्हीं कॉन्टैक्ट को अपडेट करना है जो इस अकाउंट आईडी से कनेक्टेड है. तो जैसे ही मैंने ये फिल्टर ऐड किया कि आई वांट दैट कॉन्टैक्ट व्हिच इज कनेक्टेड टू दिस अकाउंट आईडी, सो मुझे वही 3 कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे. मुझे वो 500 कॉन्टैक्ट नहीं मिलेंगे, मुझे वो 50 कॉन्टैक्ट्स नहीं मिलेंगे, मुझे वही 3 कॉन्टैक्ट मिलेंगे जो इस अकाउंट आईडी से कनेक्टेड है. सो उसका मुझे आईडी मिल गया, उसका मुझे फोन मिल गया. फाइन. सो यहाँ से जैसे मैंने अकाउंट आईडी निकाली है वैसे ही चलो अकाउंट फोन नंबर भी निकाल लेते हैं. स्ट्रिंग ACC फोन. फाइन. स्ट्रिंग ACC फोन और उस फोन को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया. व्हाट ACC इक्वल टू ACC डॉट फोन. save it. Once we have saved this, now what I want, again I am going to write a for loop. for loop क्यों लिया हमने, बिकॉज यहाँ लिस्ट मैंने कहा है आपसे कभी भी हम लिस्ट लेंगे तो हम for loop लेंगे. यहाँ पे भी हम for loop क्यों लेते हैं, बिकॉज हियर वी हैव टेकन लिस्ट. सो रिमेंबर, जब भी लिस्ट आएगा for loop आएगा ही आएगा. ये आप एक माइंड में सेट कर दो. So here, since we have taken here list of contact, so therefore, so we are going to take for loop. I can provide here contact con, and then we can provide con list. And now what we are expecting? We are expecting कि con dot phone, contact का जो phone है उसमें क्या आ जाए, account का phone. यहाँ पे निकल रहा है account का phone. So this account phone number I have given here. And then update. That's it. See. So ये हमने क्या किया, यहाँ से हमने अकाउंट का डिटेल डाला, निकाला
ये हमने अकाउंट का डिटेल निकाला और उस अकाउंट के डिटेल को हमने कॉन्टैक्ट के डिटेल में फीड किया और हमने कॉन्टैक्ट को अपडेट कर दिया. दैट्स इट. सेव इट नाउ. Save it now. Let's go to our UI. Can see the phone number. सब तीनों के different phone number है. I am going to the here. Let's go for phone. ये अकाउंट के फोन को मैंने अपडेट किया something 0000. मैंने 0 ही डाला बस. Let's update it. Save it now. Save. Let's go for contact. See now it's updated. फिर से कोई फोन नंबर आप अपडेट करो. Save it now. Related. It's updated. So 3 फोन नंबर है तो 3 अपडेट हुए. अगर 10 फोन नंबर तो all 10 will be updated. See, क्या है इस लॉजिक में? कुछ है क्या? Guys, let me know. See this code and let me know if you have any query anywhere. कहीं पे भी कोई डाउट हो तो. And remember, जब आप इंटरव्यूज के जाओगे ना, so 80 to 90% चांस यही होता है कि आपको जो वो ट्रिगर देंगे ना, आपसे वो ट्रिगर पूछते हैं, वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट ट्रिगर पूछते हैं. बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. बहुत नहीं होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट. फाइन. सो रिलेशनशिप जो ट्रिगर्स होते हैं ना, वो ज्यादा पूछते हैं इंटरव्यूज में. इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा. सो लेट मी नो गाइस, एवरीवन, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे इस कोड में? चलिए. come on, if you have any query, any confusion, let me know. ये बस मैंने कहा ना, ये आपका ट्रिगर में जो टफ ट्रिगर कहे जाते हैं ना, बस उसमें से आते हैं. बाकी सारे ट्रिगर्स मैक्सिमम इजी होते हैं. रिलेशनशिप वाले ही थोड़े से कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बट तो उसमें लॉजिक्स ज्यादा होते हैं. बस यही है. Rahul, this update con, this will update the table itself, right? It will Contact update. table. yes कॉन्टैक्ट के टेबल को अपडेट करता है वो. राइट. ओके. अभी आप बोलोगे कि नहीं, मुझे क्या Sorry. करना है. आपको रिक्वायरमेंट ऐसा आया कि जो भी अकाउंट के फोन नंबर को आप अपडेट कर रहे हो, राइट, वॉट एवर द अकाउंट यू आर अपडेटिंग, आप चाहते हो उसके सारे कॉन्टेक्ट डिलीट करना है, तो डिलीट कर दो. यहाँ से सेम ही कोड रहेगा. यहाँ से आपने अकाउंट लिया, अकाउंट की आईडी निकाली, यहाँ से अकाउंट की आईडी पास की, यहाँ से वो कॉन्टेक्ट निकाला. कॉन्टेक्ट निकाले अगर आप चाहते हो तो इसको मत लिखो, डायरेक्टली यू कैन गो एंड राइट हियर डिलीट. जैसे ही आप अकाउंट को अपडेट करोगे, उस अकाउंट के जो कॉन्टेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा. बट ये Rahul, ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं आते. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग दिस. Rahul, in this way, can we update multiple tables, ऑफ multiple कोर्स, objects? Sorry. ऑफ कोर्स. अगर आप चाहते हो, सी दैट्स व्हाट है. अगर आप चाहते हो कि जैसे अपने अकाउंट को अपडेट किया, कॉन्टैक्ट का भी फोन नंबर अपडेट हो जाए, केसेस में भी कुछ फोन नंबर वो भी अपडेट हो जाए, अपॉर्चुनिटी में भी फोन वो भी अपडेट हो जाए, राइट. Mm-hmm. मल्टीपल चाइल्ड शेयर भी है और आपको चाहिए कि एक फोन नंबर आपने अपडेट किया अकाउंट का, कॉन्टैक्ट के भी, अपॉर्चुनिटी के भी और केस के भी, तीनों के फोन नंबर अपडेट हो जाए. हालांकि अभी अपॉर्चुनिटी और केसेस में फोन नहीं है. इफ यू वांट यू कैन बिल्ड ए कस्टम फील्ड. ठीक है, बना सकते हो. बट अपडेट करना चाहते हो, सेम थिंग. क्या करना है आपको? यही आपको कॉपी पेस्ट करना है लॉजिक. किसके लिए? अभी कॉन्ट्रैक्ट क्लिक किया, सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर Okay. अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी में भी क्या होगा? आईडी. अपॉर्चुनिटी और अकाउंट में क्या लिंक है. सो यू कैन गो फॉर, सी लेट मी शो यू. सो यू कैन गो फॉर हियर अपॉर्चुनिटी. बस आपको सही एपीआई नेम चूज करना है. अपॉर्चुनिटी. सी अपॉर्चुनिटी और अकाउंट में डेफिनेटली वी हैव लिंक. यहाँ है ना, ये है. इस पे भी अकाउंट आईडी ही नाम है. यू कैन टेक अकाउंट आईडी. लिया आपने, अकाउंट आईडी पास किया, यहाँ आपने लिख दिया क्या? अपॉर्चुनिटी. आपने फोन, अभी फोन नंबर अकाउंट के अपॉर्चुनिटी का तो कोई फोन नंबर है नहीं. अगर आप बनाओगे सो दैट विल बी कस्टम फील्ड. ठीक है. सो सिंपल. Right. हो गया. यही तो है वो. सॉरी, ये यही रहेगा. एंड नाउ अपॉर्चुनिटी का जो कॉन्टैक्ट फोन होगा अपडेट हो जाएगा. सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर केस. तो जैसे ही आपने बस एक अकाउंट का फोन नंबर अपडेट किया, आपके कॉन्टैक्ट का भी फोन अपडेट हो जाएगा
अपॉर्चुनिटी का भी फोन हो जाएगा, अगर आप चाहते हो केस का भी फोन अपडेट करना वो भी कर सकते हो एक साथ, तीन ऑब्जेक्ट के। ओके क्लियर? Right. So it's giving me error. Why? Error क्यों दे रहा है ये? Anyone can tell me? Let me show you the error. And please let me know क्यों आ रहा है error. पहली बात तो आ रहा है डुप्लीकेट, ये हमने यहाँ पे भी लिया है और यहाँ पे भी लिया है, so it's saying the duplicate. So I can provide one or I can provide OPP list. ताकि ये डुप्लीकेट ना हो. फाइन, अब ये एक पे चला जाएगा, डुप्लीकेट वाला एरर गया. फाइन, अब बचे दो एरर. पहला आ रहा है वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट फोन. क्या बोला कि यहाँ पे ये फोन एग्जिस्ट नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या, क्योंकि हमने यहाँ अंडरस्कोर सी दिया है और यहाँ हमने फोन दिया है. फाइन, चलो अभी क्या आ रहा है, दिस नो सच कॉलम फोन, मतलब क्या है कि अभी अपॉर्चुनिटी के अंदर फोन फील्ड नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट्स गिविंग मी एरर. जैसे ही आप अपॉर्चुनिटी के अंदर कोई कस्टम फोन फील्ड बनाओगे ना, तो ये दोनों ही एरर गायब हो जाएंगे. गॉट इट? आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ये एरर आ रहा है तो इसको आप पढ़ के आप जान पाओ कि आखिर क्यों. ऐसा नहीं कि अब यार ये क्या एरर है, फोन मैंने डाला है बट वी आर नॉट एबल टू सेव दिस लॉजिक. इशू क्या है, क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी के अंदर ये फोन फील्ड है ही नहीं. ये तो मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया है. ओके, जैसे ही आप फोन फील्ड बनाओगे दैट एरर विल बी रिमूव्ड. Right. चलो, so this is the code if you want to update your child data on whenever you have update anything on the parent record. किसी और कुछ पूछना है एवरीवन? यस और नो? सर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें हमें ट्रिगर डीएक्टिवेट मतलब रिमूव करना पड़ता है या डीएक्टिवेट करना पड़ता है? ऑफ कोर्स यू कैन डीएक्टिवेट इट. अब सपोज मान लो कि मैंने अभी कॉन्टैक्ट पे शायद 2-3 ट्रिगर लिखे होंगे. लेट मी शो यू. इफ आई कैन गो फॉर कॉन्टैक्ट, you can go for contact and go for trigger. You can see multiple trigger. No, सिर्फ एक ही ट्रिगर है या अकाउंट पे शायद दो मल्टीपल होंगे. ओके, मे बी आई ऑन थिंग ऑन अकाउंट. यस, मल्टीपल 3 ट्रिगर्स, तीनों एक्टिव है. सो आपको किसी एक को डीएक्टिवेट करना है, सपोज आपको ये ऑटो कॉन्टैक्ट क्रिएट नहीं करना है, सो यू कैन गो देयर. फाइन, एडिट इट एंड यहाँ पे आपका एक्टिव है, इसको डीएक्टिवेट कर दो और सेव कर लो, बस हो गया. अब वो आपका लॉजिक तो लिखा रहेगा, रखा हुआ है, बट दैट ट्रिगर विल नॉट एग्जीक्यूट. इसको हमने डीएक्टिवेट कर दिया, अब आप ये रन नहीं होगा. सो इट्स अप टू यू कि कौन से ट्रिगर को एक्टिवेट रखना है, कौन को डीएक्टिवेट करना है. ओके किसी और को कुछ पूछना है? एनी क्वेरी एवरीवन? चलो, so this is all for today's logics of triggers. So now you have to, अब आप ये आपके ऊपर है, आप इन चीजों को कितनी प्रैक्टिस करते हो. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये हैंड्स ऑन होगा. So no query guys, nothing. Okay then, let's meet in next session. So next session, don't worry, the trigger will be completed because 2 and 3 logics more we have in triggers that we are going to see. Okay, Yeah. thanks all then. Thank you. Okay. Bye bye. Thank you. Okay, sir. Yeah.